Assalamu alaikum everyone. Welcome to online class of physics. In the previous video lecture we were talking about waves and wave motion. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ एक्टिविटीज स्टडी की थी कि वेव एनर्जी को कैसे ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह। एक एक्टिविटी हमने स्टडी की जिसमें हमने एक टब ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर हमने एक पेंसिल को डिप किया। दैट मीन्स कि हमने उस सरफेस में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की, उसकी सरफेस के ऊपर कुछ रिपल्स क्रिएट हुई और वो रिपल्स फिर उस टब की बाउंड्री की तरफ मूव कर रही थी। हमने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, हम इसको प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं घर में, एक छोटी सी एक्टिविटी है। और फिर उस सरफेस के ऊपर हमने एक कार्क को प्लेस किया था। अब उस कार्क ने वाइब्रेट करना शुरू किया, विच मीन्स दैट कि जो मैकेनिकल एनर्जी हमने यूटिलाइज़ की एक पेंसिल को जब आप डिप कर रहे थे एक टब के अंदर, तो इट मीन कि आप जो मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वही मैकेनिकल एनर्जी, वही एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुई जिसने जाकर कार्क को वाइब्रेट कराया। इस एक्टिविटी से ये बात प्रूव हुई कि वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, कैरी करती हैं या ट्रांसपोर्ट करती हैं। आज हम वेव की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ वेव। व्हाट आर वेव्स और व्हाट इज वेव? वेव इज बेसिकली ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम that transport energy from one place to another without transferring of matter. वेव किसी मीडियम में एक ऐसी डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है मैटर को ट्रांसपोर्ट किए बगैर, और मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेटरी मोशन पर क्या करती है, मजबूर करती है। इसको हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। सो वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज electromagnetic waves and second one is mechanical wave, or mechanical waves and electromagnetic waves. So waves are classified into two categories. One is mechanical waves and second one is electromagnetic waves. What are mechanical waves? Mechanical waves क्या है? Those waves which required material medium for their propagation are called mechanical waves. ऐसी waves जिनको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड हो, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। दोज वेव्स विच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मैं उसके की पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड मीडियम, रिक्वायर्ड मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। Such type of waves are called mechanical waves. What are electromagnetic waves? Electromagnetic waves क्या हैं? Those waves which does not require material medium for their propagation are called electromagnetic waves. ऐसी waves जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, which do not require medium for its propagation, they are called electromagnetic waves. Now examples of mechanical waves. Sound wave, water waves, waves on the surface of string, okay,
Similarly, examples for electromagnetic waves. What are the example of electromagnetic waves? Hamid beta, you stand up. Give some example of electromagnetic waves. Electromagnetic waves के example क्या है? Yes, light wave, microwave, then radio waves, okay, X-rays. Very good. So these are some common example of electromagnetic waves. ये electromagnetic waves की कुछ common example हैं. ये ऐसी waves हैं जिनको propagate करने के लिए medium required नहीं है. ऐसी waves जिनको propagate करने के लिए medium required है उन्हें हम क्या कहते हैं? Mechanical waves कहते हैं. So sound waves, water waves, waves on the surface of the string, waves on the surface of helical spring. So these are some common example of mechanical waves, and these are some common example of electromagnetic waves. Further, electromagnetic waves are classified into two categories. Mechanical waves को हम further दो categories में classify करते हैं. उसको मैं यहाँ पर express कर देता हूँ. Mechanical waves are further classified into two categories. Number one is longitudinal waves. Longitudinal waves, and number second is transverse waves. So what are longitudinal waves and what are transverse waves? Those waves in which the particle of medium moves back and forth along the direction of propagation of waves are called longitudinal waves. I repeat my sentence. Those waves in which the particle of medium moves back and forth along the direction of propagation of waves are called longitudinal waves. What are transverse waves? Those waves in which the particle of medium moves or vibrate perpendicular to the direction of propagation of waves, such type of waves are called transverse waves. हम इसका पैटर्न ड्रा करेंगे, उस पैटर्न से आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स में क्या डिफरेंस है. फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर इसकी नोट कर लेंगे हम. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हेलिकल स्प्रिंग है, एक स्लिंकी स्प्रिंग है, लाइक दिस इज़ आवर स्प्रिंग. ये हमारे पास एक स्प्रिंग है विच इज़ टाइड विद ए फिक्स सपोर्ट. इसको हमने एक फिक्स सपोर्ट के साथ इसके एक एंड को हमने टाई कर दिया और सेकंड एंड को आपने अपने हैंड में ले लिया है. व्हेनेवर वी पुश और पुल द स्लिंकी स्प्रिंग, जब हम इस स्लिंकी स्प्रिंग को ऐसे पुश करेंगे या हम इसको ऐसे पुल करेंगे, या हम इसको ऐसे पुल करेंगे, ऐसे खींचेंगे, या हम इसको ऐसे पुश करेंगे, देन द वेव्स आर जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्प्रिंग. तो इस स्प्रिंग की जो ओरिएंटेशन है उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. जब आपने इसको फॉर एग्जांपल पुश किया तो ये जो इसकी लूप्स हैं, दीज आर लूप्स, ये जो इसकी लूप्स हैं, इट बिकम्स क्लोज टुगेदर. ये लूप्स आपस में क्लोज हो जाएंगी और कुछ रीजन आपको ऐसे नज़र आएंगे कि जहाँ पर ये लूप स्पेस अपार्ट होंगी. फिर कुछ रीजन आपको ऐसा नज़र आएगा कि ये लूप्स आपस में फिर क्लोज टुगेदर है, फिर स्पेस अपार्ट है, फिर क्लोज टुगेदर है, फिर स्पेस अपार्ट है. सच टाइप ऑफ वेव्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. मैं इसको यहाँ ओरिएंट कर देता हूँ, इसका पैटर्न दिखा देता हूँ आपको, ऐसे, और फिर ये ऐसे हो गया. स्प्रिंग की लूप्स ऐसे आपको ओरिएंट होती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ से हम आप इसको ऐसे ले लेते हैं. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नोन एज कंप्रेशन, this is known as compression, and this is known as rarefaction. In this type of wave, the particle of medium, direction of motion of particle of medium, medium के particle
ऐसे मूव करेंगे। वेव की डायरेक्शन ऑफ वेव, ये वेव ऐसे प्रोपोगेट हो रही है। इसीलिए हमने डिफाइन किया कि ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करेंगे, ऐसे मीडियम के पार्टिकल इस वेव की डायरेक्शन के साथ बैक एंड फोर्थ आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज साउंड वेव। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये समटाइम आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव बाय ए सिंपल एक्सपेरिमेंट और सिंपल एक्टिविटी दैट हाउ साउंड वेव पोजेस लॉन्गिट्यूडनल नेचर, के साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल नेचर कैसे है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से इस बात को आप प्रूव कीजिए, साबित कीजिए। तो मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ। मैं आपको अभी एक्सप्रेस कर देता हूँ कि क्या साउंड वेव की एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। तो आंसर इज यस, कि साउंड वेव की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल है। कैसे है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक आपके पास सोर्स ऑफ साउंड है, स्पीकर है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से एक बंदा यहाँ पर कोई एड्रेस कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो साउंड वेव जनरेट होंगी, जो साउंड वेव प्रोड्यूस होंगी, वो इस तरह से यहाँ पर एयर की जो पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स को ऐसे कंप्रेस कर देंगी। फिर बीच में आपको यहाँ पर रेयरफेक्शन क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा, देन कंप्रेशन, देन अगेन कंप्रेशन एंड देन रेयरफेक्शन एंड सो ऑन। सो इस एक्टिविटी से हम इसको प्रैक्टिकली हम प्रूव करते हैं कि साउंड वेव की नेचर कैसे है, लॉन्गिट्यूडनल है। और साउंड वेव बेसिकली क्या है? मैकेनिकल वेव है। चूँकि जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। कैसे पहुँच रही है? मीडियम रिक्वायर्ड है। अगर इस रूम में एयर ना होती तो मेरी साउंड आप तक ना पहुँचती। ये आप प्रीवियस नेक्स्ट चैप्टर में हम एक चीज़ स्टडी करेंगे, बेल जार एक्टिविटी है, उसमें भी हम इसको प्रूव करते हैं कि मैकेनिकल नेचर कैसे है साउंड वेव की। और वहीं पर हम एक और चीज़ स्टडी करेंगे, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। बट मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ कि एक शख्स यहाँ पर एड्रेस कर रहा है, यहाँ पर उसकी साउंड प्रोड्यूस हुई, तो उसकी साउंड से यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल्स हैं उसको इन साउंड वेव्स ने कंप्रेस किया, देन रेयरफेक्शन क्रिएट हुआ, फिर से कंप्रेशन क्रिएट हुआ। तो यही कंप्रेशन और रेयरफेक्शन यहाँ पर भी आपको इस स्प्रिंग के ऊपर भी अपीयर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे स्टार्ट में आप स्प्रिंग के लूप्स को देख रहे हैं कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट नेक्स्ट जब आपने उसको पुश किया तो यहाँ पर फर्स्ट उसके एक स्पेसिफिक रीजन में लूप्स बहुत क्लोज हो गई, फिर आपको यहाँ पर लूप्स स्पेस अपार्ट नज़र आ रही हैं, फिर लूप्स आप देख रहे हैं कि फिर क्लोज टुगेदर हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। और यहाँ पर मीडियम के जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है वो वेव की डायरेक्शन के अलोंग होती है। और जो ट्रांसफर वेव्स हैं, इन ट्रांसफर वेव्स के लिए भी हम एक स्लिंकी स्प्रिंग लेते हैं, बट हम जब उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उसका अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये आपने एक फिक्स पोर्ट को ले लिया, जिस फिक्स पोर्ट के साथ आपने उसी स्प्रिंग को यहाँ पर बांध दिया ऐसे, तो ये स्टार्ट में अभी आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे, ये सिंपली आपने हेलिकल स्प्रिंग को ले लिया। इसी को हम नेक्स्ट फिर यहाँ पर जब इसका पैटर्न अपीयर करेंगे तो अभी आपने इसको जर्क प्रोवाइड करना है, आप इसको शेक करेंगे वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन फॉर ट्रांसफर वेव्स, टू स्टडी द नेचर ऑफ ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव की नेचर को स्टडी करने के लिए हम इस स्प्रिंग को शेक करेंगे, जर्क प्रोवाइड करेंगे वर्टिकली अप और डाउन। देन व्हाट विल हैपन? फिर क्या होगा? तो हम ये देखते हैं कि इस स्प्रिंग के ऊपर ऐसे लूप्स बनती हैं, इसकी जो लूप्स हैं वो इस अंदाज से जनरेट होती हैं, लाइक दिस। सो यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आपको ये स्प्रिंग नज़र आता है। इस चीज़ को, इसका जो मीन लेवल था उससे ऊपर जो आपको एक पीक नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं क्रेस्ट। और जो इस मीन लेवल से नीचे ये जो आपको स्प्रिंग का पोर्शन नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं ट्रफ। सो व्हाट इज़ क्रेस्ट एंड व्हाट इज़ ट्रफ? क्रेस्ट और ट्रफ क्या है, हम इनको भी वन बाय वन डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज़ क्रेस्ट?
crest is the portion of a wave above the mean level is called crest, and the portion of a wave below the mean level is called trough. So now what is the behavior of particle of medium? यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं? योर आंसर इज वेरी सिंपल. द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. ये मैं जो एरो हेड लगा रहा हूँ दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ और द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम. वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम. पार्टिकल ऑफ मीडियम. मीडियम यहाँ पर कौन है? सो हेयर मीडियम इज स्प्रिंग. स्प्रिंग जो है ये यहाँ पर मीडियम है. इसी तरह हम एक टब के अंदर वाटर को लेते हैं, वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो इट मीन्स वहाँ पर भी इस तरह की नेचर क्रिएट हो जाती है ट्रांसफर वेव्स की. जो एक कार्क हमने लिया, उस कार्क को वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करा रहे हैं तो इट मीन्स दैट वहाँ पर मीडियम वाटर एज ए मीडियम बिहेव कर रहा है. तो मीडियम वाटर जो है उसके जो पार्टिकल है वो उस कार को अप एंड डाउन मूव करने पर मजबूर करते हैं. तो दैट मीन्स कि वहाँ पर भी मीडियम के पार्टिकल अप एंड डाउन वेव की प्रोपोगेशन के साथ क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं. जैसे ये आपके पास एक टब है, इसके अंदर आपने एक पेंसिल को डिप किया, उससे यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, यहाँ पर रिपल्स क्रिएट हुई, और उन रिपल्स से हम क्या देखते हैं कि ये रिपल्स इस टब की बाउंड्री की तरफ जा रही हैं. और अगर आप इसके ऊपर कोई मटेरियल, कोई पीस ऑफ पेपर अगर आप रख देते हैं, या हमने एक कार्क को लिया था, अगर हम एक कार्क को रख देते हैं तो ये कार्क ऐसे अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है. और वेव कैसे प्रोपोगेट कर रही है? वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही हैं. अगर मैं इस एरो हेड और इस एरो हेड के बीच में एंगल देखूं तो ये एंगल मुझे मिलता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, विच मीन्स दैट इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव्स द पार्टिकल ऑफ मीडियम move perpendicular or vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave. So such type of wave are known as transfer waves, and in which the particle of medium move back and forth. Such type of waves are known as longitudinal waves. इस तरह की नेचर की जो वेव्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? longitudinal waves. तो हम बात कर रहे थे crest की. What is crest? So crest is the portion of wave above the mean level and trough is the portion of wave below the mean level. इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, दैट इज वेवलेंथ. व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या है? सो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ. अगर आपको यहाँ पर डिफाइन करना हो वेवलेंथ को, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन रीजन or two consecutive rarefaction region is known as wavelength. For longitudinal wave, अगर आप इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास कंप्रेशन है, ये आपके पास rarefaction, then again compression, then rarefaction. सो अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज wavelength, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन रीजन are two consecutive rarefaction region that is known as lambda. Similarly for transfer waves, transfer waves के लिए भी हम ऐसे ले सकते हैं कि ये आपके पास एक दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा, और दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो लैम्डा. सो सिंपली यू कैन डिफाइन वेवलेंथ एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ इज known as wavelength, that is represented by lambda, and the distance between two consecutive compression region or two consecutive rarefaction region is known as 1 lambda or wavelength. So what is compression? compression क्या है? ये जो हम एक longitudinal waves में स्लिंकी स्प्रिंग के ऊपर आप ये जो पैटर्न देख रहे हैं, ये जो चीज़ देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? compression. So how you can define compression? compression को आप कैसे डिफाइन करेंगे? What is compression? शरियार बेटा आप खड़े हो जाइए. What is compression? compression क्या है? So compression is simply the region of the spring where the loops are close together is called compression, and where the loops are space apart, जहाँ पर loops space apart होती हैं उस region को हम क्या कहते हैं? rarefaction. So here loops are space apart. Such a region is known as, such a region on the surface of spring is known as rarefaction, and where
on the surface of slinky spring where the loops are close together, this specific region is known as compression. इसको हम कहते हैं compression, इसे हम कहते हैं rarefaction. ओके, आई होप कि आप लोग वेव्स और वेव्स की जो टाइप्स, बेसिक जो टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फर्दर हमने मैकेनिकल वेव्स को क्लासीफाई किया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफ़र वेव्स में, इसको आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, पैटर्न आपको समझ गया होगा, इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और नेक्स्ट इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल मैंने आपको सिंपल बताई, साउंड वेव्स इज़ वन ऑफ बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, विच मीन्स दैट, जिसके मीनिंग ये है कि जब आप बात करते हैं तो उस वक्त आपकी जो साउंड वेव है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्रिएट करते हैं एयर में, तो इट मीन कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। ट्रांसफ़र वेव्स, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है या आपके पास एक स्प्रिंग है तो उसके ऊपर अगर क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में अगर वेव्स अपीयर हो रही हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि वो ट्रांसफ़र वेव्स की एग्जांपल है। सो वेव्स अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ ए स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ, दैट रिप्रेजेंट्स दी ट्रांसफ़र वेव्स। आर ऑन ए स्प्रिंग, या किसी स्प्रिंग के ऊपर, आर ऑन द सरफेस ऑफ ए वाटर सरफेस के ऊपर जो वेव्स अपीयर होती हैं, दैट इज़ आल्सो ट्रांसफ़र नेचर। उनकी नेचर भी कैसी होती है? ट्रांसफ़र होती है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी, कि वेव एनर्जी को कैसे कैरी करती हैं। हम कुछ और एक्टिविटीज़ स्टडी करते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज़।